at 8 p.m. And how are you all doing? It's my trademark style. So today we have a very special guest with us, and well, I want to give a very like an absolute formal introduction about her. So let me tell you about what is Future Tayari. First of all, there are so many newcomers here. So, hello everyone. Yes. So Future Tayari is an online edtech platform for soft skills, and right now we have courses on demand and courses on etiquette and grooming for your professional success. You have effective communication for your dream job. How do you crack an interview? How to develop your self-confidence, and people who are interested in films, there's a career or there's a course on careers behind the camera where you know about all the careers that you can opt to the behind the camera. And the few other courses that are in the pipeline are art of networking, written communication, and many more. I will tell you about all of these. But today we have a special guest, and let me introduce her. She's an investment banker and an entrepreneur by profession, and she's deeply passionate about enabling youth to hone their career. She's born and raised in Agra. She topped Agra district in 12th standard and went on to study economics honors from Lady Shri Ram College, LSR. And she was also heading a college's renowned placement cell and led career development and placement initiatives for the students. So after graduation, she worked in Japan's biggest investment bank and handled multi-million-dollar deals in Europe, Middle East, and Africa. During her time as an investment banker, she became focused on involving more women in finance, and that largely remains, of course, a male-dominated industry. You know, she's also an active part of United Nations and has been selected for leadership summits by Youth for Human Rights International and United Nations volunteers to work on sustainable development goals. She is currently pursuing her MBA in the, this is very important guys, she's pursuing her MBA in the top business global schools called INSEAD, and she has been named as Heinrich Foundation Global Trade Leader Scholar. I tell you about this, and let me invite, her name is Sugandha Mahajan. Sugandha, let me send you an invite. Are you there? Whoa! Hi! Hi, Shraddha. How are you doing? Can you hear me? Yes, I can hear you. How are you? I am doing very well. Oh my God, that was such a glorious introduction. I think we should do this more often. This is good for my self-confidence. Your confidence, dude. We are getting our confidence boosted, by you. So guys, मैं आपको थोड़ा हिंदी में, हमने सुगंधा से बोला है, of course she is an Agra girl, लेकिन हमने बोला हम थोड़ा हिंदी यूज करेंगे, और आप लोगों को मैं बता दूं, सुगंधा की लाइफ से ना मैं दीपक को हमेशा कहती हूँ, आई एम जेलस ऑफ सुगंधा's लाइफ, बिकॉज मैं वो जिस तरह से लाइफ जी रही है, जस्ट इमेजिन गाइस, वो पेरिस में है, वो चलो ठीक है, शी इज इन वन ऑफ द बेस्ट MBA schools of the world, और ये सारी स्कूल्स में पता है सुगंधा, मुझे पहले लगता था कि MBA स्कूल में से पढ़ाई होगी एंड मैथ्स होगा, नो, देयर इज सो मच, इमेजिन शी इज विद द बेस्ट ऑफ द लॉट, और ये पढ़ाई के साथ साथ कितनी सारी चीजों का लर्निंग होता है ना, जैसे दुनिया के बेस्ट लोग वहां आए हैं, सारे अलग अलग कोने से सारे यंगस्टर्स आए, एंड देन यू गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर, देयर हैबिट्स, अबाउट देम, and so many new people. Too much of you. I want to know about your life, Sugandha. There. So, actually, Shraddha, आपने बहुत अच्छी तरह से उसको summarize करा है. मेरी life literally अभी ऐसी ही है. I know I'm studying MBA and studying at INSEAD.
which is right now it is the #1 business school. But मुझे आपका प्रोसेस भी जानना है कि यहाँ पे आने का प्रोसेस क्या था पूरा सिलेक्शन का. ओके, कमिंग बैक टू योर थिंग. absolutely. So, लेकिन more than that, more than academics, it is the learning from the people. यहाँ पर, like you said, इतने cultures के लोग हैं. मेरी खुद की क्लास में 89 nationalities हैं. And these are not just 89. yes, and these are just not just nationalities. Most of the people are people जिन्होंने different countries में work किया हुआ है, जो एक different cultural heritage से आते हैं. मतलब उनके parents एक nationality के, मतलब mother एक nationality के, father एक nationality के, and वो raise कहीं और हुए हैं. So आप expect कर सकते हैं कि जो learning इनसे मिलती है, that's unparalleled. So that is what life has been. MBA काफी intense है. So it is just 1 year long, and that means कि we have to juggle a lot of things. We have to be super efficient, and हमें हमारी priorities day 1 से पता होनी चाहिए. ये सबसे important है. अगर आप अपनी priorities में थोड़ा सा तालमेल नहीं रखते हैं, it becomes very difficult, क्योंकि आपके पास बस 24 hours है and आपके पास millions of things करने को है. So that is what life has been right now. I'm happy कि अब यूरोप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुल रहा है, so I'm able to travel a little bit, see other countries as well, and explore more about what I want to do in life. Yeah. और यहाँ पे just to बताने के लिए, यहाँ पे entrance, how rigorous was it? So काफी rigorous process है for sure. For MBA, सबसे पहले you have to give a competitive exam, which itself is like I think that for me that was like the most difficult part. To Okay. आप एक certain time तक studies में involved होते हैं, but उसके बाद there comes a time where you have to prioritize, like you have to give away your work and you have to go back to studies. That is very difficult because आप उस चीज के लिए used to ही नहीं होते हैं. So GMAT is very tough, GMAT, GRE, but उसके बाद there is like an application process जिसमें आपको अपने essays लिखने होते हैं, recommendation letters लिखने होते हैं. Deepak was one of my main recommenders. Yeah. So Deepak was really involved in my process, and फिर उसके बाद there are interviews. Most of them, they are interviews with alumni. So आपको काफी अच्छी तरह से insight मिलती है into the college that you're looking into, and you can really reflect कि क्या आप इस college का एक part होना चाहते हैं या नहीं. And फिर उसके बाद that's when you get your admission, and then of course other things like scholarship and everything get involved. INSEAD has been consistently a very high rated school in the world. Like I said, this year it's ranked #1. And they get a lot of applications. So आपको application process में काफी work करना पड़ता है. But then, honestly speaking, all of that hard work really pays off. So it pays off. If somebody listening to us is thinking of an MBA at a top business school, I would strongly suggest that you go for it. It is absolutely I want to do it, girl. You don't need it. I want to experience what you are experiencing. So, by the way, मैं आप सबको बता दूं, why I really wanted Sugandha to come here and speak to all of us is, सुगंधा अपने पढ़ाई में तो आप ठीक ठाक थे ही, लेकिन उसके अलावा ये जो स्किल है कॉल्ड नेटवर्किंग, वो इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है. एंड तो आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू यू, ये स्किल, इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ नेटवर्किंग, आप क्या बोलेंगे? So networking in very simple words is relationship building. That is it. It is. I know networking अब इतना ज्यादा एक common word हो चुका है and इतनी hype create हो चुकी है, but इसके beyond relationships के beyond networking कुछ और नहीं है. You meet people जिनके साथ आपका mindset मिलता है, people जिनके साथ आपके thought process, आपके ambitions, आपके dreams मिलते हैं. You connect with them at a very deep level. You don't connect with just job दिला दो या फिर ये information दे दो. No, वो काफी superficial है. You connect with them at a more human level, and then उसके बाद the results are just, there's no limit to the results that you can get out of those relationships. Simple as that. Networking is that. It is not
you know, going, like we discussed this, Shraddha, before. It is not कि आप Yes. conferences में जाएं and then you like shake hands, you pass your business cards. It's not all of that. या It जब is, नेटवर्किंग वर्ड बोलते हैं तो ये सीन दिखता है ना आधे लोगों को कि Yeah. जैसे रूम में है, जब सब एक साथ लोग हैं और आप बिजनेस कार्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, नंबर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, और उससे क्या होता है पता नहीं, कुछ नहीं. हाँ. Exactly. वो networking नहीं है. Networking rather, अगर if you want like better examples, look at how your parents network. आपके parents एक community में रहते हैं, एक neighborhood में रहते हैं. Then they form relationships in their neighborhood. फिर you know, it's such a funny joke जो इंडिया में होता है कि the best way to meet a neighbor is कि उनके घर जाके चीनी मांगो या दही मांगो, something like that. So हाँ, asking for exactly. tiny favors, asking for tiny help in just, you know, showing your vulnerability, वो है नेटवर्किंग. क्योंकि तब आपके रिलेशनशिप्स फॉर्म होना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे आप उस पर वर्क करते हैं, वो डीपर होते हैं, एंड देन वो दोज आर पीपल हु विल stand by you, those are people who will contribute to your success, those are people who will contribute anytime you have challenges. So it is not like just going to any random person, किसी भी stranger के पास जाकर आप उनसे help मांगे. No, it is connecting with the people that you really want to connect with. So right. तो कहता लेकिन आज सपोज हमारी जनरेशन है, योर जनरेशन, माय जनरेशन, तो वो कैसे नेटवर्किंग कर सकते हैं आसानी से? बताइए, वर्चुअल वर्ल्ड में बताइए कैसे कर सकते हैं, है So ना? I think best चीज, one of the good things जो कोविड एंड पैंडेमिक की वजह से हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है the ease of virtual. People are more comfortable talking virtually. Like Instagram Live also. There was a time जब ये Instagram Live ज्यादा नहीं होते थे, पर पैंडेमिक की वजह से लोग काफी टाइम घर पे थे and they wanted कि किस तरह से हम communicate करें. All of these mediums started coming up. Zoom came up, video conferencing. You have that video element. अब हर communication possible, you know, every possible communication में आपका एक video element जरूर होता है. So the best thing is that we all should be very thankful of, we all should be celebrating is कि now the world is comfortable on the virtual platform. So सबसे पहले तो ये है. The good thing out of this is कि आपके लिए difficult नहीं होगा to be able to connect with people. आपको अगर आप किसी के साथ connect करने की कोशिश करते हैं, chances are वो आपको मना नहीं करेंगे क्योंकि उनको वो odd feeling नहीं आएगी. So that is the second really good thing. Then the third is कि people have become very creative and inventive of how they want to connect. I know कि like back when I was in college in LSR, LinkedIn was very new for us. तो हम लोग LinkedIn में हमारा प्रोफाइल तो जरूर बनाते थे and we used to send requests to people, लेकिन most of the times उनका कुछ रिजल्ट नहीं आता था. पर अगर अब आज के जमाने में आप LinkedIn पे किसी के साथ कनेक्ट करते हैं for professional reasons and you make sure that the tone of your communication professional है, there is very low likelihood that people will not respond to you. अगर आप 20 ऐसे मैसेजेस भेजते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको एटलीस्ट 50% लोग वापस रिप्लाई करेंगे. So LinkedIn is a professional, form of networking. But apart from that, even Instagram, Facebook, connecting on different networking platforms like Future Tayari, that is also creating a So, community. Sugandha, I want to, before this, I want to ask, ये बात कर लेते हैं कि हमको नेटवर्किंग करनी क्यों है? जरूरत ही क्यों है इस चीज Yeah, की? of course. It's Right, a that's very very important. कोई बोलेगा हाँ, I'm fine with, जिस तरह से मैं लाइफ जी रही हूँ, मुझे नहीं बात करनी स्ट्रेंजर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है मुझे. It is तो a really good हाँ. question. Okay, so networking क्यों करनी है? I know कि हम लोग हमारी लाइफ में, like चाहे वो एजुकेशन है या प्रोफेशनल लाइफ में, हम लोग काफी स्मार्ट है. हम लोग also काफी हार्ड वर्किंग है, तो हम लोग अपने प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत हार्ड वर्क करते हैं and we built like a really good skill set and a good toolkit. लेकिन life and world has gone beyond that. The competition is so intense that अगर आप एक certain proficiency level के हैं, chances are ऐसे कई लोग हैं जो आपसे even better हैं. So how do you stand apart? How do you reflect your true personality in your professional life? And that is where networking comes in. That is where your relationships and आप कितनी ease से एक relationship build कर सकते हैं, वो आता है. अगर आप normally देखें, हम लोग जब business करते हैं, हम लोग business एक corporate entities के साथ नहीं करते हैं, हम लोग business करते हैं लोगों के साथ. So for example, अगर आपको से एक consultancy hire करनी है, तो आप ABC कंसल्टेंसी के लिए नहीं जा रहे. आप ABC में जो पर्सन वर्क कर रहा है
और आपके साथ उनका एक अच्छा रिलेशनशिप है, आप उनको हायर कर रहे हैं। ये हमारी लाइफ में हर एस्पेक्ट में होता है, प्रोफेशनल, पर्सनल, इमोशनल, हर एस्पेक्ट में। सो नेटवर्किंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ कम्युनिटी हम लोग कोलैबोरेशन पे ही रह सकते हैं। हम कंपटीशन में थ्राइव, कंपटीशन इज गुड फॉर अस, कंपटीशन इज हमारे इंजन्स को फायर्ड अप रखता है, बट सस्टेनेबल अगर आप देखें अपनी प्रोग्रेस, आप वो कंपटीशन के साथ नहीं कर सकते, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी कि आप नेटवर्किंग को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि आपके आसपास के लोग काफी नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो दैट इज वन। द सेकेंड इज कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत हमारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है और इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन है, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है वो इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना। जैसे अगर मेरे को किसी कंपटीशन या फिर मेरे को इंसियाड के लिए, फॉर एग्जांपल, मेरे को इंसियाड, मैं इंसियाड में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे जानना है इंसियाड में लाइफ कैसी है। मैं इंटरनेट में बहुत आर्टिकल्स पढ़ सकती हूँ, लेकिन उससे वे बेटर मेरे को कवरेज एंड वे बेटर इंफॉर्मेशन मेरे को तब मिलेगी अगर मैं किसी पर्सन जो ऑलरेडी इंसियाड में पढ़ रहा है या पढ़ चुका है उससे मैं कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएंगे। वो मुझे इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको डी क्लटर करके सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बिट्स एंड पीसेस देंगे। सो दैट एक सॉर्ट ऑफ फ्रैगमेंटेड वे में एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। राइट। और इंसान, हम कितनी बार सोचते हैं कि हम मेहनत कर लेंगे, हम अपना काम कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता ना। यू नीड पीपल टू सपोर्ट यू। कोई भी इंसान सिर्फ अकेले नहीं आगे जा सकता है, ना पर्सनली ना प्रोफेशनली। एग्जैक्टली। एंड इनफैक्ट ये चीज जैसे मैं अपने स्कूल में ही देखती हूँ कि आप बहुत स्मार्ट लोग हैं, पर अगर आप लोगों के आपके पास एक राइट ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जिनके साथ आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, जिनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिनको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपकी प्रोग्रेस बहुत स्टॉल हो जाती है। ये हर जगह है, क्योंकि हमको वही लोग पसंद, मतलब हम लोग उनके साथ ही वर्क करना चाहते हैं जिन्हें हमें पसंद है, राइट। एंड आप अकेले में काम नहीं कर सकते, हम हर्मिट्स नहीं है। सो अगर हम लोगों को लोगों के साथ काम करना है, वी हैव टू बी नाइस विद पीपल, सो वी हैव टू बिल्ड दोज रिलेशनशिप्स विद पीपल। राइट। और कितनी बार ऐसा लगता है ना कि हमें को जस्ट बिकॉज हमको जरूरत है हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है? तो इसलिए कहते हैं कि रियल रिलेशनशिप्स बनाइए। और कैसे कोई जाए, मतलब मुझे रियल रिलेशनशिप्स बनानी है तो मैं ऐसे ही लोगों से फ्रेंडशिप करती रहूं, या मुझे अच्छा मुझे ये इंसान से मेरा काम आने वाला है आगे, तो चलो मैं अभी मैं पहचान लगाती हूँ और मैं थोड़ी फ्रेंड बन जाती हूँ इनकी। इन ऑल ऑनेस्टी अगर आप नेटवर्किंग अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं पता नेटवर्किंग का, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट विद अ पर्पस कि मुझे XYZ चीज के बारे में पता करना है, इसलिए मैं XYZ लोगों के साथ से बात करना चाहती हूँ ताकि वो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। टू बी ऑनेस्ट, इसमें कोई शेम नहीं है, मतलब आपकी एक डायरेक्टेड अप्रोच है, राइट। आपको पता है आपको क्या चाहिए और आपको पता है कि आपको XYZ लोगों से वो चीज मिल जाएगी, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखें, वो चीज पे ऑफ नहीं करती। शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक असाइनमेंट, एक कंपनी, एक स्कूल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एक डेवलप करना चाहते हैं एक ऐसी कम्युनिटी ऑफ पीपल जिन पे आप एट एनी गिवन पॉइंट रिलाई कर सकते हैं, जिनके पास खुद के इतने हाई लेवल रिसोर्सेज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक मोर लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल अप्रोच निकालनी पड़ेगी। और उसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट बी सेल्फिश। द मेन थिंग अबाउट नेटवर्किंग इज कि आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि नहीं मेरे को क्या मिल रहा है। आपको हर टाइम ये सोचना पड़ेगा इस ग्रुप ऑफ पीपल में मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, इस ग्रुप ऑफ पीपल में मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ। एंड ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपकी तरफ से लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द लॉन्ग रन, क्योंकि जो आपकी पर्सनल नीड्स है वैसी सिमिलर पर्सनल नीड्स दूसरे लोगों की भी है। तो अगर आप उनकी नीड्स को नहीं सेटिस्फाई कर रहे, अगर आप उनको वो इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज नहीं दे रहे जो आप क्रेव कर रहे हैं, तो वो आपके साथ स्टिक अराउंड नहीं करेंगे। दैट इज वन। The second is that, because again, it's a global world which is connected virtually. आपके पास लोगों की कमी नहीं है कि कितने लोगों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। because of that factor, हमें कई बार लगता है कि
मैं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स थोड़ी ना, ये तो कुछ ज्यादा ही काफी एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप हो रहा है। तो हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि कभी आपको अपनी थोड़ी सी सॉर्टिंग करनी होती है रिलेशनशिप्स की, लेकिन वो भी आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनके पास आप सिर्फ मेंटरशिप के लिए जाते हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनके लिए आप मेंटर हैं, तो आप उनको एडवाइस दे रहे हैं, आप उनको सजेशंस दे रहे हैं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए चाहिए होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, एंड देयर इज नो हार्म कि आप अपने रिलेशनशिप्स को इन कैटेगरीज में डालें। ये आपकी खुद की सैनिटी के लिए भी अच्छा है, जैसे जैसे धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ता रहता है। एंड ये उस चीज के लिए भी हेल्पफुल है कि व्हेन, अगर फॉर एग्जांपल आपको आपने किसी पर्सन से, आपने किसी फ्रेंड से हेल्प मांगी और आपको उस पर्सन से वो हेल्प नहीं मिली, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बिकॉज आपको पता है कि आपको एक सर्टेन नीड सेटिस्फाई हो रही है एक सर्टेन फ्रेंड के साथ, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके। So well said. Yes, Sugandha. So by the way, people, future तैयारी का एक नया कोर्स आने वाला है आर्ट ऑफ नेटवर्किंग के बारे में. It's called आर्ट ऑफ नेटवर्किंग. और सुगंधा, and I can't tell you, सुगंधा के वजह से she has such a huge contribution in this course. And और आपको यही पता चलेगा कि सुगंधा ने कितना उसको प्रैक्टिकल तरीके से हमें समझाया है कि नेटवर्किंग की जरूरत होती क्यों है, नेटवर्किंग एग्जैक्टली है क्या, और नेटवर्किंग ना करने से लाइफ कैसी बन सकती है, नेटवर्किंग अच्छी तरह से करने से लाइफ कैसी बन सकती है, और बहुत सारी चीजें। और हम कभी कभी क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को रोकते हैं, हम नेटवर्किंग नहीं कर पाते, सारी चीजें। तो सुगंधा, राइट नाउ आप पेरिस में है और वहां पे यू आर इन अ प्लेस में जहाँ पे दुनिया के हर कोने से लोग आए, एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ पीपल, ठीक है, और आप इंडिया में भी थे। तो आप मुझे ये बताओ कि डिफरेंस क्या है अपने सोच में, अपने परसेप्शंस में, और बेसिकली लोगों में क्या फर्क है इंडियंस और वहां पे? I won't say that it's like an India thing, but I feel कि जब आप अपनी होम कंट्री में होते हैं, and I feel कि किसी भी कंट्री में हो सकता है, जब आप अपनी होम कंट्री में होते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत अच्छी तरह से रहना चाहते हैं, एंड आप उस कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। तो इसलिए जो आप जिन टाइप के लोगों से आप मिलते हैं, जिन लोगों के साथ आप एक रिलेशनशिप बनाते हैं, वो एक बहुत ही सिलेक्टेड टाइप ऑफ लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपकी काफी कॉमनैलिटीज होती हैं, काफी ऐसी चीजें होती है जिसमें आप लोगों का माइंडसेट, आप लोगों का बैकग्राउंड मैच करता है। पर इंसियाद जैसे स्कूल में, एंड स्पेशली अगर आप एमबीए के लिए एक डिफरेंट कंट्री में जा रहे हैं जहां पे आपको इतनी डाइवर्सिटी मिल रही है, आप यू फॉरगेट दैट। आपको वो कॉमनैलिटी नहीं चाहिए, आपको चाहिए आपसे कंप्लीटली डिफरेंट लोग, क्योंकि आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव बिल्ड करने आए हैं। आपको अपना कंफर्ट जोन घर पे मिल रहा था, लेकिन अगर आप एक नए एरिया में आए हैं, आप वहां पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसी चीज है जो मैं अपने अराउंड हर टाइम देखती हूँ। तो बिकॉज ऑफ कोविड हमारी इतनी सोशल गैदरिंग्स नहीं हो रही जितनी नॉर्मली होती हैं, एंड काफी बड़ी क्लास है, तो यूजुअली पहले लाइक बिफोर पैंडेमिक हम लोगों की बहुत बड़ी पार्टीज होती थी, एंड लोगों के इतने इवेंट्स एंड सोशलाइजिंग इवेंट्स होते थे, पर वो काफी लिमिटेड हो चुके हैं। लेकिन गुड थिंग इज कि उसकी वजह से हमारे स्मॉलर सेटिंग्स में अब हम लोगों से मिलने लग गए, तो हमारे इंटीमेट डिनर्स होते हैं, इंटीमेट ड्रिंक्स होती हैं, सो दैट इज वेयर जब आप लोगों के साथ काफी कनेक्ट करते हैं। लेकिन मैं हर बार ये चीज नोटिस करती हूँ कि अगर आपने फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल आपने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाए, एंड आप उनके साथ बहुत अच्छी तरह से क्लिक कर रहे हैं, आप उनके साथ कंटिन्यू करेंगे अपनी फ्रेंडशिप, लेकिन आप यू विल मेक श्योर कि आप एफर्ट्स भी ले रहे हैं कि आप और लोगों को जाने। So that is one very big thing. Second, people don't take things seriously. So we have to understand कि हम लोग हमारी लाइफ में हम सबकी certain insecurities होती हैं, certain vulnerabilities होते हैं, हमारे cultural differences भी होते हैं। कोई चीज जो एक इंडियन के लिए completely normal है, वो किसी और nationality के लिए normal नहीं होगी। तो लोग इन differences को अब seriously नहीं लेते। They accept कि differences rather हमारी as a world, हमारी as a community को better बना रहे हैं। So हम लोग वो चीज इतनी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, एंड हम लर्न करते हैं उस प्रोसेस से। So that is one very important thing. The third thing is that people have no reservations in reaching out. I think ये सबसे ज्यादा important चीज है कि लोग ट्राई करने से like they don't घबराते नहीं है। उनको अगर कुछ लोगों से मिलना है, कोई alumni से मिलना है,
किसी से कनेक्ट करना है, वो ट्राई करेंगे हर पॉसिबल वे में रीच आउट करने का, जस्ट इन केस उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और पर्सन के साथ रीच आउट करेंगे। तो वो विच इज सच करेज, गुड थिंग, ऐसे ही होना चाहिए ना ये करेज। हाँ एग्जैक्टली, हम तो मतलब कभी कभी निराश हो जाते हैं कि यू फील हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए, राइट? हम लोग पर्सनली ले लेते हैं, हमें पर्सनली नहीं लेना, बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि अगर एक पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, मे बी उस पर्सन के पास टाइम नहीं है, मे बी उस पर्सन ने अपना लिंक्डइन, अपना व्हाट्सएप, जहां पे भी आपने उनको रीच आउट करने की कोशिश की है, वो चेक नहीं किया है, मे बी बिकॉज दे हैव अदर थिंग्स गोइंग ऑन। सो डोंट टेक दिस प्रोसेस पर्सनली, आप ट्राई करिए अपना नेट जितना वाइड कास्ट कर सकते हैं आप करें, एंड जितने लोगों से आप मिल सकते हैं फिर उनके साथ एक बहुत ही जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें, नॉट अ सुपरफिशियल रिलेशनशिप, वेरी जेन्युइन, वेरी यू आर कंसर्न्ड कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके क्या गोल्स हैं, आप कैसे उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई सी हैपनिंग अराउंड मी। You're right. Sugandha, I'm just reading few of the messages. Suki Bakshi, I think, is your friend. She like best people, best geographies, best school. Who wants to say? Oh, Shreya, please say my name. Thank you. People are asking for your autographs. Oh wow. Your friends. Somebody is saying she needs some sugar, and you're so sweet. थैंक यू, मैं क्यूट दिख रही हूँ, एंड हम जरूर हिंदी में बोलेंगे। यस, कोलैबोरेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड इन टुडेज कल्चर ऑफ पीपल। यस, गुप्ता गौरव and Sanjana, very sweet girl. You know, she's saying, I know networking is really important nowadays. Also, networking is really hard at the same time. It's really hard to influence people. Yeah, she's a very bright girl. I know she writes so well, and she's a student. So, थोड़ा मुश्किल है सुगंधा, है ना? कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कुछ लोगों के लिए आसान होता है, किसी के लिए मुश्किल होता है? एक्चुअली हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का कॉन्सेप्ट, एंड कैसे कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा बड़ी गैदरिंग्स में बहुत ज्यादा लोगों के साथ मैं इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मे बी नेटवर्किंग मेरे लिए नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों को सबसे पहले पता होने वी शुड नो इज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैं कंप्लीटली इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट हूँ। हम लोग जैसे जैसे अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस में जाते हैं, वैसे वैसे हमारा रिस्पॉन्स, हमारे रिएक्शंस डिफर करने लगते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि मैं एक सर्टेन गैदरिंग में बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं सब लोगों से मिल रही हूँ, सब लोगों से बातें कर रही हूँ, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। सिमिलरली डिफरेंट सिचुएशन में मेरा कॉन्फिडेंस में भी नीचे चला जाता है, मैं इंटिमिडेट हो जाती हूँ, मुझे ज्यादा वॉइस आउट नहीं करने ओपिनियंस। सो अगर आप कभी भी ऐसा फील करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉर्मल, it is absolutely okay to have different reactions for different situations. So सबसे पहले तो ये चीज है। दूसरी, नेटवर्किंग की बेस्ट चीज है कि एक कोई रेसिपी नहीं होती कि नहीं आप X करें, आप स्टेप 2 करें, स्टेप 3 करें एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड नेटवर्क। नो, ये आप पर डिपेंड करता है, आप किस चीज के लिए कंफर्टेबल हैं, आप कितने इंटरेक्शन से कंफर्टेबल हैं, आप कितने लोगों से मिलना चाहते हैं, ये सब आप डिसाइड करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना एक नेटवर्क अकॉर्डिंगली, कम्युनिटी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो अगर कहीं आपको फील होता है कि नहीं मैं जैसे देयर अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड ईमेलिंग, जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं है, पर आपने से फॉर एग्जांपल उनका ईमेल एड्रेस आपको कहीं से मिला है, या फिर आपने उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा है, एंड विदाउट नोइंग देम आप उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं या ईमेल ड्रॉप करते हैं, उनको कहते हैं कोल्ड ईमेलिंग। सो अगर आप उस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इट्स ओके, आप नहीं करिए। अगर से फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि आपको एक पर्सन से कनेक्ट करना है लेकिन आपके म्यूचुअल कनेक्शंस हैं, तो आप पहले अपने म्यूचुअल कनेक्शन से बात करिए कि मैं XYZ से मिलना चाहती हूँ या XYZ से मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या आप उनको इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप मेरे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल से, अगर आपको नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक सर्टेन इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है, मैं ऑयल एंड गैस में काम करना चाहती हूँ लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी?
मैं अपने फ्रेंड से बात करूंगी, मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगी क्या आपको किसी ऑयल एंड गैस में किसी पर्सन को आप जानते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उस पर्सन से जैसे जैसे आपको धीरे धीरे पता चलता है, आप अपने नेबर से बात करते हैं, अपने स्कूल फ्रेंड से बात करते हैं, आप जिनके साथ जिम जा रहे हैं, जिनके साथ आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप सबसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कनेक्शन मिलेगा, अकॉर्डिंगली आप उनसे रीच आउट कर सकते हैं. सो कमिंग बैक, आप सिर्फ और सिर्फ वो चीजें करिए जो आप एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग जिनके लिए आप कंफर्टेबल है. फिर धीरे धीरे आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस उसमें इंक्रीज होने लगता है. फिर आप थोड़े और चीजें जो उनके साथ आप पहले कंफर्टेबल नहीं थे, आप वो ट्राई करना चाहते हैं, जैसे मे बी कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेलिंग, या फिर गोइंग टू इवेंट्स विदाउट फ्रेंड्स. ये सबसे बड़ा एक चीज होती है कि कई बार हम लोग ऐसे इवेंट्स हम लोगों को पता चलते हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस पता चलते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स पता चलते हैं, लेकिन अगर हमारे कोई फ्रेंड्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग को थोड़ा सा इंटिमिडेट हो जाते हैं कि यार मैं अकेले क्या करूंगी, या मैं अकेले कैसे जाऊं. सो वो चीज के लिए हम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने थे. स्टार्ट स्मॉल, आप जिनके साथ कंफर्टेबल है आप उसके साथ स्टार्ट करिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज है विच इज अ जर्नी, आप इस पे स्टॉप नहीं कर सकते. पहले ऐसी चीज जैसे like you said, as a person I am very comfortable with networking, लेकिन there are still things जिनके लिए मैं अभी नहीं comfortable हूँ, and यहाँ पर while I'm studying at INSEAD, धीरे धीरे अब I'm challenging myself कि नहीं मेरे को ये चीज करनी है जो पहले मैं बिल्कुल मेरे को नहीं लगता था कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के पास जाकर एक सर्टन केस इंटरव्यू या फिर एक मॉक इंटरव्यू कर लूं, मेरे को नहीं बिल्कुल वो कंफर्ट फील नहीं होता था अगर मैं किसी के स्ट्रेंजर के साथ करूं. लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपने आप को चैलेंज कर रही हूँ. चैलेंज करना अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो नहीं कर रहे आप ग्रो नहीं कर रहे अपनी लाइफ में. बोलते ना शुरू तो करिए. आई रियली लाइक ये मेट्रो वाला इरफान खान का डायलॉग, शुरू तो करिए, गाड़ी बाहर तो निकालिए. हम कभी हम कितनी बार होता है हमारे एक फिक्स सेट ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, हम सब उन्हीं से मिलते रहते हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, या Shreya Kejriwal, how to overcome negatives of networking? I didn't really get the question. हाँ. Negatives of networking. I'm unsure कि exactly कौन से negatives, अगर श्रेया कोई specific negatives के बारे में जानना चाहती है, maybe she can write. But in general मेरे को लगता है networking के क्या नुकसान है, probably if she might be asking. There is no नुकसान. There is no नुकसान. There is absolutely networking no से फायदा ही फायदा है. Absolutely. ये एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है. अगर कभी ऐसा होता है कि आप एक सर्टन लिंक्डइन में फॉर एग्जांपल आप एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप किसी के साथ डेवलप करते हैं एंड वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप उस टोन में नहीं जा रहा जिसके लिए आप कंफर्टेबल है, एंड ऐसा कई बार होता है, स्पेशली विद वुमेन कई बार होता है. एब्सोल्युटली ओके, ये आपके कंट्रोल में है. आप उस रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं, आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप उनको बहुत ही पोलाइटली बोल सकते हैं कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इन कंटिन्यूइंग दिस कॉन्वर्सेशन. तो आप एट एनी गिवन पॉइंट ऐसा कभी नहीं है कि आप किसी सिचुएशन के लिए एक सॉर्ट ऑफ आप एक सिचुएशन के प्रिजनर है, ऐसा कभी नहीं है. यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल. कभी भी अगर आपको लगता है कि ये चीज मैं हैंडल नहीं कर सकती या फिर मैं ये दिस इज टू मच फॉर मी, गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. इट्स एब्सोल्युटली ओके. हाँ, आपको बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ओ शिट ये पर्सन तो बहुत ही एक एक हाई पोजीशन में है, एक ऐसी कंपनी में जहां पे मैं काम करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं वो रिलेशनशिप नहीं टर्मिनेट कर सकती. ऐसा कुछ भी नहीं है. आपसे आपकी इंटेग्रिटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है. तो अगर कभी भी आप डेंजरस फील करते हैं फ्रॉम अ सर्टेन रिलेशनशिप, please exit that relationship. You don't need that relationship. Very well said, Sugandha. Okay, I have Vedant, very, very sweet and a very sensible boy. He's asking, hi, I would like to tell I'm doing bachelor's in management and would opt for MBA in future. With studies, I have now started venture in small scale ads agency. For expansion, networking is good, he's asking. Networking is good for anything. I mean, अभी तक we've been discussing professional reasons, but I know there are so many people जिन्होंने network से अपने gym partners जिनके साथ वो sports खेलते हैं, different categories में, जिनके साथ वो अपनी hobbies share करते हैं, वो सब भी develop किए हैं. तो अगर for example especially you, because you're starting a new venture and आप अभी studies कर रहे हैं, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप रीच आउट करिए और आप जितने लोगों से मिल सकते हैं, आप जितने लोगों से बात कर सकते हैं, आप करिए. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर पर्सन के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है. सो अगर
आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि यू डेवलप अ रिलेशनशिप विद समवन, आपको उनका टाइम की रिस्पेक्ट करनी होगी एंड आपको मेक श्योर करना होगा कि अगर आपने से उनके साथ उनको एक ईमेल भेजा या उनको मैसेज भेजा है, वो 30 सेकंड्स जो उन्होंने स्पेंड किए हैं कि आपके मैसेज को पढ़ने के लिए, वो उनके 30 सेकंड्स वेस्ट नहीं। So what I mean by that is, say for example you want some leads अपने business के लिए, आपको कुछ connects, आपको कुछ information चाहिए, सबसे पहले research everything possible that you can find on your own। ऐसे questions मत पूछिए जो काफी obvious होते हैं, जिनको आप Google कर सकते हैं। आप वो questions पूछिए जो smart है, जो पर्सनल क्वेश्चंस है, मतलब सॉर्ट ऑफ यू नो उस पर्सन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस जो सिर्फ वो पर्सन आंसर कर सकता है। बिकॉज अगर आप उस पर्सन का ये टाइम रिस्पेक्ट करेंगे, दैट पर्सन विल हैव अ गुड इमेज ऑफ यू। वंस दे हैव अ गुड इमेज ऑफ यू, वो शाय वे नहीं करेंगे फ्रॉम recommending you to the next person। So in every interaction that we have to make sure that हम लोग हमारा best foot forward रखें। ये सबसे important होता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरे को इजीली मिल सकती है, अगर मुझसे कोई मांगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं उन मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इतनी एक बेसिक स्टेप नहीं कर सकते, देन इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे नहीं लेकर जा सकते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेम थिंग इज ऑल्सो रिस्पेक्टिंग टाइम। अगर आप किसी के साथ कॉल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसा कई बार होता है, एंड स्पेशली तब होता है जब आप डिफरेंट ज्योग्राफीज में हैं, तो टाइम जोन का डिफरेंस होता है। आपने सेट किया है टाइम कि मैं 3 PM किसी पर्सन को कॉल करूंगा, एंड आप 3 PM नहीं करते हैं, 3:05, 3:10, 3:15 कॉल करते हैं। दिस इज अ बिग ब्लंडर। अगर आपने किसी को कमिटमेंट किया है, दिया है, प्लीज फॉलो अप। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल चीज होती है। बेस्ट चीज होती है कि अगर आप किसी के साथ कॉल या फिर किसी के साथ मीटिंग अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हैं, आप मेक श्योर करिए कि आप उनको एक छोटे से एडवांस में एक मैसेज भेज दें, ताकि आप उस पर्सन को भी रिमाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ऑन टाइम हर कॉल पे आ गए हैं या फिर अपॉइंटमेंट के लिए आ गए, लेकिन वो पर्सन अवेलेबल नहीं, तो आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए एक रिमाइंडर मैसेज अपने कैलेंडर में वो एंट्री करना कि मेरा एक सर्टेन अपॉइंटमेंट है। ये सब दीज आर स्मॉल ट्रिक्स, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। Respect your time and of course the other person's time. Yeah. So how do you create? हम जैसे हम एक बार डिस्कस कर रहे थे कि जो पुराने जनरेशन या इंडिया में भी पहले जब ओल्डर जनरेशन की बात कर रहे थे, तब हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज होते थे, राइट? जो बाद में आई डोंट नो आफ्टर ब्रिटिशर्स या ऐसे क्या हो गया कि हम लोग जनरली हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरा क्या फायदा होगा, मुझे करना है। कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, इतना स्ट्रेंथ लोगों में कम हो गया है फॉर वॉट एवर रीजन, बिकॉज वी स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। लेकिन वो टाइम पे लोग कैसे कर लेते थे, और ये एटीट्यूड आज भी होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली अभी चीजें सही है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अबंडेंस, इसलिए हमारे दिमाग में है कि सब कुछ कम है हमारे पास, राइट? So I think you're absolutely right. A big reason for this shift is because of insecurity. अब इतनी like for example इंडिया में ही the population is so big, opportunities limited है, competition इतना ज्यादा है, and हर person अपना best foot forward रखता है। तो इट्स ऑब्वियस कि आप काफी इनसिक्योर फील करने लगते हैं, इसलिए आप अपने रिसोर्सेज शेयर नहीं करना चाहते, आप अपने कनेक्ट्स, अपने कनेक्शंस बिल्कुल अपने पास रखना चाहते हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि मे बी लाइक आई सेड बिफोर, मे बी आपका एक शॉर्ट टर्म गोल उस चीज से अचीव हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही डिजास्टरस अप्रोच होती है। बिकॉज अगर आप एक इनसिक्योर माइंडसेट के साथ रहेंगे, एक अपनी लाइफ में अपनी प्रोफेशन को एक इनसिक्योर माइंडसेट के साथ अप्रोच करेंगे, इन जनरल यू विल नॉट परफॉर्म वेल। ये एक नॉर्मल बात है। बट फॉर नेटवर्किंग वाइज एज वेल, ऐसी कई बार चीजें होती हैं जो अगर आपने किसी को एक लीड दी है, आपने किसी के साथ एक रिसोर्स शेयर किया है, कहीं ना कहीं आपको भी उस पर्सन का वो रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक इट्स एज सिंपल एज दिस, आपका एनवायरमेंट एक मिरर की तरह है, जो आप उस मिरर को रिफ्लेक्ट दिखाएंगे वो मिरर रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप नो शेयरिंग, नो कोलैबोरेशन, नो कोऑपरेशन जैसे बिहेवियर्स अगर आप दिखाएंगे मिरर को, एग्जैक्टली सेम थिंग विल गेट रिफ्लेक्टेड टू यू। तो आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपको अपनी कम्युनिटी जो आपके अराउंड है वो कैसी चाहिए।
आपको क्या अपने अराउंड सेल्फिश लोग, सेल्फ सेंटर, जो दूसरों लोगों के बारे में नहीं सोचते वैसे लोग चाहिए, एंड ग्रेट, कंटिन्यू द वे यू आर, लाइफ विल नॉट रियली चेंज फॉर यू. लेकिन इफ यू वांट कि आप ambitious, really bright people जो एक दूसरे के लिए बहुत जो एक दूसरे के लिए अपने सक्सेस मेट्रिक्स भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम मेकिंग श्योर कि आप आप अपने गोल्स में पीछे नहीं रहे, देन आपको उस तरह की एनर्जी अपने रिलेशनशिप्स में लानी पड़ेगी. सो आई अंडरस्टैंड ये चेंज एक काफी डिफरेंस है वर्सेस ओल्डर जनरेशंस. जब ओल्डर जनरेशंस, अगर इफ यू लुक एट योर पेरेंट्स, इफ यू लुक एट योर ग्रैंड पेरेंट्स, they were very happy to share. They were very happy to have big people around them and everything. But why is it that this is not the case? That difference has come in. लेकिन good thing again, like I'm going back to the same thing, virtual world की वजह से हमारी काफी limitations वो चीज हट चुके हैं. अगर आप अपने आप को वो virtual world के साथ comfortable रख सकते हैं, the world is your oyster. There is no limit to what you can achieve. There is absolutely no limit to who you can reach out. लेकिन आपको अपना वो एटीट्यूड में ये आदत नहीं है अभी भी सबको, बिकॉज पैंडेमिक तो नई चीज है ना, इट्स बीन जस्ट 1 year. तो लोगों को, हमको फिर भी लोगों से मिलने की आदत है. तो वर्चुअल वर्ल्ड में टू एस्टैब्लिश रियल रिलेशनशिप, अब पीपल आर रियलाइजिंग के हो सकता है. Exactly. कॉन्वर्सेशंस या वीडियो कॉन्वर्सेशंस, पर पहले people are becoming very creative. जैसे मैंने इतनी बार देखा है कि coming back to hobbies, like say आपकी एक certain hobby है, आपको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, लेकिन आप यूजुअली क्रिकेट देखते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वो एक ग्रुप वाली फीलिंग होती थी. नाउ देयर आर दीज ऑनलाइन व्यूइंग पोर्टल्स जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप वर्चुअली हैं किस लोग, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो चैट कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, जो द सेम जो एनर्जी होती है ऑन अ, if you're sitting with your friends and आप क्रिकेट देख रहे हैं, वो सेम एनर्जी वर्चुअल प्लेटफॉर्म में होती है. समथिंग एज सिंपल एज इन इंडिया there were so many games जो आ गए थे, वो लूडो किंग and all of those things, and उससे लोग अपने friends बना लेते थे because आपको एक certain चीज में interest है. This is a very simple example, लेकिन why I'm giving you this example is because networking is that simple. It is not कि नहीं मेरे को job चाहिए इसलिए मैं वो करूँ. It is very simple. It starts with like the smallest thing, and वो कहीं ना कहीं आपकी world, आपकी life में बहुत high areas में reach कर सकता है. I think it's a mindset. पहले अपने दिमाग में सोच लीजिए that it is not difficult. It is exactly me, the way I am. I like to be around people. और basically बाकी लोग भी हमारे तरह ही होते हैं. Everybody likes to be around people. Everybody wants to have friends. It's just life की कभी कुछ टाइम होता है जब कोई busy होते हैं या उनकी priorities अलग होते हैं. But I think everybody is in the same boat in a way. Yeah. Right? I can give a few suggestions of like ऐसे initial steps अगर आप लेना चाहते हैं virtual उसमें जो आप कर सकते हैं. Let's start with social media. आपके फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, वो फ्रेंड्स पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, अपने स्टेटसेस डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं, एक्सेट्रा. फर्स्ट स्टेप, बी एक्टिव in their lives. वो पोस्ट कर रहे हैं, प्लीज एक अच्छे कमेंट्स डालिए. स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, वो अपने अचीवमेंट्स शेयर कर रहे हैं, उनको उन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करिए. That initial step, that is like a very primary step, लेकिन it's a good step to build relationships. Yeah, so very important. Rather than just being jealous of, अरे यहाँ घूमने गया, वो यहाँ पार्टी कर रहा है. No, just say hello, you're looking good. This is a nice place. What you're wearing is nice. Anything, right? Exactly. Now, अगर आपके friends के कुछ ऐसे friends हैं जिनमें आप भी interested है कि वाओ ये person बहुत ही interesting है, I want to meet these people. तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप उनसे मिल रहे हैं या नेक्स्ट टाइम आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो चैट कर रहे हैं, मेरे को इंक्लूड करो. सो इट्स स्मॉल स्टेप्स लाइक दीज जिनके साथ आप यू कैन स्टार्ट ऑफ, एंड धीरे धीरे यू डेवलप योर ओन टूल किट, थिंग्स दैट जो आप पहले नहीं कंफर्टेबल थे आप वो सब करना स्टार्ट कर देते हैं. मैं सोशल मीडिया का इसलिए एग्जांपल ले रही हूँ कि इट इज दिस वन थिंग जो आप इंस्टेंटली अभी कर सकते हैं, लाइक राइट आफ्टर दिस इंस्टाग्राम लाइव, सी अपने फ्रेंड्स की स्टोरीज, देखिए वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, एंड उनमें एक प्रोएक्टिव कंट्रीब्यूशन करिए. बिकॉज अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत ही साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह अपने फ्रेंड्स, अपने नेटवर्क, अपने द पीपल हु आर इन योर सोशल मीडिया, अगर आप एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह उनकी लाइफ में रह रहे हैं, दैट इज एग्जैक्टली द सेम कंट्रीब्यूशन दे विल हैव इन योर लाइफ. अगर आप चाहते हैं एक एक्टिविटी हो, आपकी कम्युनिटी आपकी एक एक्टिव कम्युनिटी बने, आपको वो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा. सिंपल है, जो देंगे वो मिलेगा. As simple as that. और just take initiative.
it's difficult these days क्योंकि आप सारे लोगों से मिल नहीं पा रहे, but it's become easier also in a way to be in touch Yeah. with a lot of people. What a good learning, absolutely. Sugandha, it's already 45 minutes, and yes, let me see if somebody's asking how CID के बारे में अगर किसी ने सवाल पूछा, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा. Ma'am, if you could please ask any tips for doing networking in creative field, Shreya is asking. Wow, creative field के लिए तो it's like the opportunities are insane. The best thing with creative field is कि आप सबसे पहले अपना जो आपका product है, आप उसको बहुत ही easily you can put it out. आप Instagram पे, Facebook, YouTube, whatever जो भी आप create करते हैं, आप सबसे पहले वो content डाल सकते हैं. Once you put yourself out कि आप क्या कर रहे हैं, आपका work exactly क्या है, धीरे धीरे आपको उस पर traction मिलने लगता है. Maybe कोई person आपकी picture को like करेगा, एक comment डालेगा, आप उनके साथ build करना start करिए. जितनी activity आप अपने social media में रखेंगे, especially for creative people, in fact this is now for everyone, but especially for creative people, जितनी आप activity अपने social media में रखेंगे, आपको उतने ही वो rewards मिलेंगे. This is one. Second, important, yeah. ऐसे काफी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनका वर्क आपको बहुत पसंद है, आप उनके साथ एक्टिविटी डेवलप करिए. अगेन इट इज नॉट वन वे. आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लोग मेरे कंटेंट पे एक्टिविटी दिखाएंगे या फिर लोग मेरे वर्क को अप्रिशिएट करेंगे तभी मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगी. आप देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम अप्रिशिएटिंग समवन एल्स. सो आप उनके साथ डेवलप करना स्टार्ट करिए. आप उनके साथ मैसेजेस कर सकते हैं, आप उनके साथ अपनी क्रिएटिव फील्ड, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, लेट्स से आप आर्टिस्ट हैं, आप ड्रॉ करते हैं, आप एंड देयर इज अनदर आर्टिस्ट जिनका वर्क आपको बहुत पसंद है, आप उनके साथ मैसेजेस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. कोई न्यू टेक्निक्स, कोई न्यू स्किल सेट, कोई न्यू वर्कशॉप्स जो हो रही हैं, मे बी कोई ऐसे ट्रेंडिंग चीजें जो आप ड्रॉ कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, आप वो चीज शेयर कर सकते हैं. तो start with yourself. आप beginning में कभी भी there are most of the times अगर आप एक long term relationship बनाना चाहते हैं, you cannot have expectations in the beginning. Beginning में it is all about giving from your side, and धीरे धीरे you start reaping its benefits. So social media is one thing. Then you can put this information out to your friends as well. आप अपने friends के groups, WhatsApp groups, etc. इनको use कर सकते हैं to get maybe clients for yourself or to get more people to collaborate with. So have an approach कि आपकी लाइफ में जितने भी आपको अपने टास्क करने हैं, मैं किस तरह से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो. ये एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. जितने लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे, सूनर और लेटर आपको उतने बड़े रिजल्ट्स, उतने बड़े मॉनेटरी बेनिफिट्स, रेपुटेशनल बेनिफिट्स मिलेंगे. बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज टू get as many people as possible involved in your work. Absolutely. Okay, last question. Very good. आप लोगों को you should see the course that is coming up, Art of Networking, और जिसमें सुगंधा ने जो inputs दिए हैं, उन्होंने इतने simple तरीके से ऐसे steps बताए हैं, very practical और very functional चीजें जो हमें लगता है ये तो मैं आराम से कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर रही थी अभी तक. So one of those things. Okay, I'm taking the last question, Sugandha. Somebody is asking what. I'll tell you. The question was, what skills do you need? क्या skills की जरूरत होती है? I read the half question to I think to be a good networker. कुछ ऐसे हमारे नेचर में हमें फर्क लाने की जरूरत है, या just be the way you are? I think सबसे easy way, I mean the first primary thing is just reach out. ये सबसे important है. अगर आप like you said, अगर आप start नहीं करेंगे तो कोई भी किसी भी चीज का यूज नहीं है. हम बिगनिंग में जो हमारे फर्स्ट मैसेजेस होते हैं वो काफी क्रूड होते हैं. मतलब आपने ये चीज देखी होगी, राइट? बिगिनिंग What are the important skills required for going network? Yes, the devils. That was you. Yeah. Perfect. So सबसे पहले आप स्टार्ट करिए. Even if you're not perfect right now, अगर आपका एक amazing introduction sentence या introduction message नहीं है, it's okay. Just start reaching out. धीरे धीरे you will work on it and you will develop that. So that is one. The second is, it is very important कि आप reflect करिए कि आप
किसी भी कॉन्वर्सेशन या किसी रिलेशनशिप में को डेवलप करते हैं तो आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इनफ नहीं है तो वो रिलेशनशिप ना ही स्टार्ट होगा ना ही वो कंटिन्यू होगा. तो उस चीज पे रिफ्लेक्ट करना काफी जरूरी है कि लेट्स से आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द पर्सन जिन्होंने क्रिएटिव फील्ड के बारे में पूछा. अगर आप अपनी तरफ से अपने अपने वर्क पे आप अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, आपका आर्ट, आपका क्रिएशन इतना ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा टू मेक श्योर कि दूसरे लोग आपको सीरियसली लें. सो आपका जो कोर वर्क है वो कहीं आपका स्टॉप नहीं कर सकता. वो कोर वर्क पे आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन, अपना फोकस रखना पड़ेगा. सो दैट इज द सेकंड थिंग. नेटवर्किंग डजंट मीन कि नहीं मैं बहुत लोगों से मिल लूंगा, बहुत अच्छी तरह से बातें कर लूंगा एंड दैट्स हाउ मेरे को बेनिफिट्स मिलेंगे. नो, आपका कोर वर्क स्टिल काफी इंपॉर्टेंट है एंड उस पर आप कंटिन्यू, इट्स नेसेसरी कि आप उस पे वर्क कंटिन्यू करें. देन धीरे धीरे हम लोग ना पिक करने लगते हैं certain languages, certain way of speaking. दूसरे पर्सन का हम लोगों को कुछ बहुत अच्छा लगता है एंड फिर हम लोगों को लगता है ओ शिट मैं ये नहीं बोलता. जैसे समथिंग एज सिंपल एज दिस, प्लीज एंड थैंक यू. इंडिया में हम लोग ज्यादा प्लीज एंड थैंक यू नहीं करते क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है, विच इज अंडरस्टैंडेबल. लेकिन अगर आप एक ग्लोबल लैंडस्केप में देख रहे हैं, प्लीज एंड थैंक यू बहुत इंपॉर्टेंट है. समथिंग एज सिंपल एज दिस, पिकिंग अप कि हमारे किस तरह से हमारा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिफाइन हो सकता है. इनफैक्ट यू हैव बिल्ट अ वेरी गुड कोर्स ऑन दैट, ऑन हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, लाइक दीज टाइनी थिंग्स हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. So वो काफी important. How do you introduce others and how do you introduce yourself and small talks, everything, yeah. Exactly. Then another skill that is very important that we've discussed already is time management. अगर आप दूसरे पर्सन का टाइम नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपका कभी टाइम नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेगा. अगर आप किसी के साथ किसी को एक कमिटमेंट देते हैं कि मैं अपना सीवी भेजूंगा या फिर मैं अपना बायो भेजूंगा या फिर मैं अपना कोई वर्क लाइक क्रिएटिव वर्क आपको भेजूंगा, मेक श्योर कि आप उनको डेफिनेटली भेजें. जो भी आप किसी पर्सन को कमिट करते हैं, फॉलो अप ऑन दैट. वो बहुत ज्यादा जरूरी है. Very important. These are just some of the things that I can talk about, but personally, like I said, नेटवर्किंग एक बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप है, सबके पर्सनल जर्नी होती है सबकी, एंड आपको धीरे धीरे पता चलना लगता है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डजंट वर्क फॉर यू, एंड आप उस तरह से डेवलप कर सकते हैं. किसी ने बहुत सही पूछा, वो सबके साथ होता होगा. जब ग्रुपिज्म होता है ना कहीं कहीं कि एक ग्रुप बना हुआ है, सो हाउ डू यू एक्चुअली ब्रेक इनटू दैट ग्रुप? ये सबके साथ हुआ होगा और वो टफ है थोड़ा. आई थिंक देयर आर टू वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट. सबसे पहले तो आपको ग्रुप की जरूरत नहीं है. यू वर्क ऑन योरसेल्फ. आप अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखिए एंड देन सी कि हाउ इज इट. मतलब होता है ना कि अगर आप एक सर्टेन ग्रुप में इन्वॉल्व होने के लिए काफी डेस्परेट होते हैं तो वो ग्रुप आपको और ज्यादा एलिनिएट करता है, वो ग्रुप आपसे और थोड़ा दूर होता है. सो आप अपनी इंडिविजुअलिटी, जस्ट बिकॉज आप एक ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं खो सकते. ये काफी इंपॉर्टेंट है. The other way is कि हाँ आप डेफिनेटली उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जब वो ग्रुप कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेज में ऐसा कई बार होता है, एक सर्टेन ग्रुप बन जाता है, स्पेशली लोग जो एक सर्टेन स्कूल से आते हैं या एक सर्टेन सिटी से आते हैं, एक सर्टेन कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, वो एक ग्रुप बना देते हैं. लेकिन उनमें धीरे धीरे लेकिन आप उनमें बहुत ऑब्जर्व कर सकते हैं ऐसी ऐसी चीजें जो कॉमनैलिटी होती है उन लोगों में जो उनको ग्रुप में रखते हैं, लेकिन हर एक का एक इंडिविजुअल सॉर्ट ऑफ ट्रिगर भी होता है. एक इंडिविजुअल पैशंस होते हैं, इंडिविजुअल हॉबीज होती हैं, इंडिविजुअल हैबिट्स होती हैं. आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, धीरे धीरे उन इंडिविजुअल्स को पहले रीच आउट कर सकते हैं. द पर्सन जो आपको लगता है सबसे फ्रेंडली है, उस पर्सन के साथ सबसे पहले रीच आउट करिए. जरूरी नहीं कि पूरे ग्रुप के साथ एक साथ फ्रेंड बन जाए. हाँ, एग्जैक्टली. सी आपका क्या उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, क्या आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं. अगर कंफर्टेबल है देन धीरे धीरे आप उनके साथ बिल्ड कर सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं उस ग्रुप में. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर it is important to belong, it is important to be part of groups, but it doesn't come at the cost of your individuality. Apni individuality, what you are, who you are as a true person, don't forget that. Yeah. Sugandha, thank you so much. Tanaja, Tanaja, you are asking lovely questions, but लेकिन अभी काफी time हो चुका है, and I'm sure she is in another time zone and she's got her lectures. But Sugandha, I just love your clarity of thoughts and the way you express.
It's so beautiful. I still love you. Shraddha, I'm going to make sure that I call you every single day. You are such a good confidence booster. To just go back into Hindi again. it's a very आपने challenging. बहुत अच्छी हिंदी बोली है ना, सब लोगों ने, इन्होंने बहुत ही अच्छी हिंदी बोली है. मेरी तो सिर्फ भी बॉम्बे वाली हिंदी है. सुगंधा की तो बड़ी आगरा की, बड़ी तमीजदार, बहुत ही अच्छी हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया है आपने. मैंने practice किया. Oh! Just go back into that flow. Really? Oh my God, so cool. But Yeah. Shraddha, it's always a pleasure to chat with you. Thank you so much. I'm so happy to speak to the people of Future Tayari, people who are really focused on their goals, few people जो बहुत serious हैं अपने development के लिए. It is so good to see that energy. I hope you guys enjoy the courses that Future Tayari is putting forward. And Thank you. once again, Shraddha, thank you so much. थैंक यू सुगंधा, थैंक यू. एग्जैक्टली हम यही चाहते हैं, बिकॉज सुगंधा ने जहाँ से शुरू किया है और इतनी यंग एज, आई मीन यू व्हाट 20, यू आर इन योर 20s, या आई मीन आई डोंट वांट टू से आई, लेकिन उस इतनी एज में सुगंधा ने इतना सब कर लिया है. और दैट्स व्हाट वी रियलाइज दैट हमारे एक्सपीरियंस से ये कुछ स्किल्स होते हैं वो लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होती है पढ़ाई के बाद. और अगर वो सही टाइम पे हमने सीख ली और हमने यूज कर लिया तो लाइफ can be very beautiful, right? It can really take us places and we get everything that we want. Yeah, हमें निराश होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हाँ. So again, thank you so much for your time. Thank you. I really Thanks, enjoyed this. Shraddha. It's my favorite subject. Thank you. Bye-bye. Bye. See ya. Bye-bye, everyone. See ya.